So let's have a look on this first unit, that is some basic concepts of chemistry. So in this unit you will clear all the concepts regarding some basic concepts. When you have learned these basic concepts, then you can understand the various principles of chemistry. First you will learn what is chemistry. So chemistry is one of the branch of science, and it is that branch of science which deals with the study of atoms, molecules and their transformation. So chemistry is that branch of science which deals with the study of atoms, molecules and their transformation. It is one of the definition given by Roald Hoffmann. So study of atoms. First of all, we study atoms in chemistry. Now we have to understand what are atoms. Atom is that smallest particle of matter which takes part in chemical reaction and has no independent existence except noble gas atoms. So that smallest particle of matter which takes part in chemical reaction, and has no independent existence, except noble gas. So क्या हमने सीखा दैट एटम वो छोटा पार्टिकल होता है किसका, मैटर का, जो किसमें टेक पार्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस में, एंड हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस. So just we are having the atom of hydrogen, we are having the atom of helium, atom of neon, right? Hydrogen atom, it always exists as H2. Similarly, oxygen O2, nitrogen N2, chlorine Cl2, fluorine F2. पर जब हम देखते हैं नोबल गैस के एटम्स, जैसे वी आर हैविंग हीलियम, नियॉन, वी आर हैविंग आर्गन, दे ऑलवेज एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक. तो ये एक्सेप्शंस रहेंगे. सो एटम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है एटम्स की यूजुअली, बट एक्सेप्शन इज नोबल गैस एटम्स. तो दैट्स योर एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिकॉज सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है. जैसे कौन कौन सा है, we are having electron, proton, neutron, we are having then quarks, then we are having mesons, right? Yeah, antiparticles, positron we are having. So these are very small, smaller than atom. So atom is not the very smallest particle, it is that smallest particle which takes part in chemical reaction and has no independent existence except noble gases. So this is your atom. So we study these atoms in chemistry. Next is molecules. Now let's define what is a molecule. Molecule is defined as simply as group of atoms which exist together, as a single unit. Which exist together as a single unit. That's your molecule. और molecule जो होता है इसकी independent existence होती है. So group of atoms which exist together as a single unit and has independent existence. इसकी independent existence होती है पर atoms की नहीं होती है except noble gases. So what is a molecule? It is simply a group of atoms which exist together as a single unit and has independent existence and has, yes, just we are having molecule of water, that is H2, molecule of carbon dioxide, that is CO2, we are having molecule of ammonia, that is NH3. तो ये सभी molecules जो होते हैं they are nothing but the group of atoms. जैसे water के अंदर कितने atoms का group है ये
3 एटम्स का. वी आर हैविंग हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम. सो इट इज ग्रुप ऑफ 3 एटम्स. कार्बन डाइऑक्साइड जरा बताओ. इट इज आल्सो a group of 3 atoms. Ammonia, it's a group of 4 atoms. We are having methane, simplest hydrocarbon. Yes, 5 atoms are there. So molecule is a group of atoms which exist as a single unit, which exists as a and has independent. Yes, ये independently exist होते हैं. ये independently, yes, just we are having water molecule. It exists as an independent or separate molecule. So these molecules have independent existence, but atoms do not have. Atoms की independent existence नहीं होती, except nuclei. And we also study, yes, their transformation. Now what is this transformation? Just we see in a chemical reaction what happens. Just we are having calcium oxide. It reacts with water. It forms calcium hydroxide. What it forms? Calcium hydroxide. So what is this? This is a molecule of calcium oxide. ये एक molecule है. Similarly, this another molecule, water molecule. When these molecules react with each other, they form a new molecule. They form a. So this is the transformation. One molecule gets transformed into another molecule. So in these chemical reactions, what happens? Transformation of one molecule takes place into another molecule. So we get the new substances. We get new substances which are having new properties, है ना? Which are having new property. So these substances are known as products. We are having in a chemical reaction, we are having reactants and we are having and products की property जो होती है, it is totally different as compared to that of react. Just we are having hydrogen. Hydrogen reacts with oxygen in a fuel cell. It forms water. It forms. तो यहाँ पे क्या हुआ? एक molecule है ना, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के molecule ये ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें चेंज हो गई? वाटर के मॉलिक्यूल. सो वाटर इज ए न्यू कंपाउंड. इट इज ए न्यू मॉलिक्यूल विच हैज न्यू प्रॉपर्टीज एंड विच है न्यू. इसकी ज्योमेट्री जो है कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर दीज टू मॉलिक्यूल्स जिनसे ये बना. जैसे मुझे बताओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट इज ए गैस. इसका जो स्टेट है फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज ए गैस. ऑक्सीजन इज आल्सो ए, बट द वाटर विच इज फॉर्मड इट एग्जिस्ट्स इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वाटर की इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये सभी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट इज केमिस्ट्री? It is that branch of science which deals with the study of atoms, molecules and their transformation. So this is one of the definition given by Roald Hoffmann. Now we can also define chemistry by another statement, that is chemistry is that branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter. कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? दैट इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर So this is another definition for chemistry. That it is that branch of science जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज किसके? मैटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मैटर, है ना? ये हम लोअर क्लास से पढ़ के आ रहे हैं. दैट मैटर इज एनीथिंग, यस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना? एंड ऑक्यूपाइज स्पेस and whose presence can be felt by any one of our sense organ. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा थिंग जिसके पास मास होगा और जो क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. दैट इज योर मैटर. एंड दिस मैटर इट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम बता सकते हैं वेदर ए सब्सटेंस इज मैटर और नॉट, वेदर एनीथिंग इज मैटर और नॉट. दैट इज मास होना चाहिए, अनदर इज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट मीन्स इट शुड हैव वॉल्यूम. इट शुड हैव, जैसे एयर है हमारे पास, इसके पास भी मास भी है, वॉल्यूम भी है. it occupies space and it can be felt by our sense organ, so it is a matter. But we are having some things which are not matter. Just we are having light is an electromagnetic radiation, so it is not matter.
जस्ट वी आर हैविंग थॉट, सोचना, है ना, ये भी कोई मैटर नहीं है, इसके पास कोई भी मास नहीं है. सो दीज things are not matter which do not have mass and which do not occupy any space, or we can simply say which do not have volume. Yes, sir. Now what we study in chemistry? We study composition of matter. Composition, that means matter किस चीज का बना है, इसकी composition क्या है. तो मुझे बताओ matter किसका बना होता है. Yes, any matter, whether it is solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate, it consists of atoms and molecules. Atoms and, so any matter is made up of atoms and molecules. तो वही जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी थी, दैट इज केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, कंपोजिशन ऑफ मैटर. तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में हम क्या स्टडी करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स यहाँ पे भी ये डेफिनेशन और फर्स्ट डेफिनेशन बोथ आर सेम, बोथ आर एक ही मीनिंग इनका आ रहा है. दैट इज वी स्टडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. जस्ट वी आर सेइंग ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये दोनों है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. किसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन के. दोनों में कार्बन के एटम्स है, दोनों में कार्बन के, पर डिफरेंस कहां पे है, इनके स्ट्रक्चर में. ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल रिंग्स, बट इन केस ऑफ डायमंड वी आर हैविंग 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. और स्ट्रक्चर की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है. वो क्या है, सो दैट इज वाई ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किस में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. जैसे वाटर मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, बेंड शेप और वी शेप. तो ये स्ट्रक्चर किस में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में. किस मैटर के पास कौन सी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हुए हैं, ये पूरा किस में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट. प्रॉपर्टीज में दोनों आ जाएंगे, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. Just we are having melting, boiling, sublimation, freezing, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में तो ये पूरा किस में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में. सो अब हमने क्या याद रखा, दैट केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. और वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज it is that branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter. And now what is matter? Anything which has mass and occupies, or we can simply say it has mass and volume, and whose presence can be felt by any one of our sense organ. That is your matter. और इसी matter को हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में. अब मुझे बताओ, द होल यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. यस, वन इज, कोई बता सकता है, पूरी यूनिवर्स जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिंग्स. वन इज द मैटर, अनदर इज द एनर्जी. क्या बताया, दैट होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. वन इज द मैटर, अनदर इज द एनर्जी. तो यही मैटर जो है केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. दैट इज व्हाई केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रांच है, किसका, साइंस का. और जब इस मैटर की प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, तब हम नए नए टेक्निक्स, नए नए टेक्नोलॉजीज जो डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है ना, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो वो कहाँ से पता चलेगा, जब हम मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो अब ये क्लियर हुआ व्हाट इज केमिस्ट्री. नाउ लेट्स सी, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है कहाँ से आया. एक्चुअली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड अल्केमी. केमिस्ट्री कहाँ से आया, यस, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड अल्केमी. सो केमिस्ट्री जो है कहाँ से आया, किसका मॉडिफिकेशन है ये, अल्केमी. एक्चुअली जो हमारे पास पहले फिलोसफर्स थे या जिनके पास केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज था, उनको कहा जाता था अल्केमिस्ट्स. क्या कहते थे, जैसे वन ऑफ द ग्रेट अल्केमिस्ट इज जाबिर इब्न हयान या जाबिर बिन हयान. दोनों तरीकों से इसको पुकार सकते हैं, जाबिर इब्न हयान और जाबिर बिन हयान.
one of the great alchemists. Not only alchemist, he is regarded as father of chemistry. He is regarded as father of chemistry. किसको कहा जाता है? जाबिर इब्ने हयान, father of chemistry. इसका बहुत बड़ा रोल रहा है एज एन अल्केमिस्ट. इसने हमें बताया एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी. आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th में, मेटलर्जी. मेटलर्जी दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स को कैसे हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, ये तो ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है रिएक्टिव मेटल्स है, वो तो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स. कैसे होते हैं? या इन द फॉर्म ऑफ ओर, है ना. वन ऑफ द mineral from which metal can be easily extracted, easily, conveniently and economically. That's called ore. That's called, जैसे हमारे पास आयरन का जो ओर है, आयरन का जो ओर है that is hematite. That is hematite. That is Fe2O3. ये इसका ओर है, किसका? आयरन का. तो आयरन इसी फॉर्म में होता है इन द अर्थस क्रस्ट. अब इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो मेटलर्जी का हम यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो है कौन यूज करते थे? अल्केमिस्ट. जैसे जाबिर इब्ने हयान, है ना. आयरन का यूज हम बहुत से पहले करते हैं. आयरन के आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स यूज करते थे या नहीं? अभी भी करते हैं ना. तो ये जो मेटल्स है एक्सट्रैक्ट करना किन्होंने सिखाया? अल्केमिस्ट ने. बहुत सारे पॉलीमर्स का हम यूज करते हैं, प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, उनके यूटेंसिल्स का. तो इन्होंने ही बताया दैट किस सबस्टेंस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है. सो जाबिर इब्ने हयान, वन ऑफ द ग्रेट अल्केमिस्ट, regarded as father of chemistry. Regarded as father of chemistry. So chemistry, it is the modification of word alchemy. It is the modification of word, or we can say ये जो chemistry है, it is derived from Arabic word. कहाँ से निकला? That is the alchemia. Alchemia है ना, Arabic word है, इसी से आया chemistry. Alchemia. तो दैट मीन्स इसमें हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल्स, है ना. केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिकल्स, उनकी रिएक्शन, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज. तो ये कहाँ से आया फिर? हाँ, दिस वर्ड अल्कीमिया, इट वाज यूज्ड बाय अरब्स. इट वाज यूज्ड बाय, जैसे जाबिर इब्ने हयान, वन ऑफ द ग्रेट, हाँ, केमिस्ट, अल्केमिस्ट, रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, मुस्लिम. सो अच्छा, अब अगर आपको पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तब क्या बताएंगे? Yes, who is regarded as father of modern chemistry? शाबाश. Father of modern chemistry किसको कहा जाता है? That is the Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier. He is regarded as father of chemistry. जब आप पढ़ेंगे आगे laws of chemical combination, उसमें पहला law जो है that is the law of conservation of mass, किसने दिया? Anthony Lavoisier ने. किसने दिया? तो इसका भी बहुत ज़्यादा contribution है किसमें? modern chemistry. किसमें? तो that's why he is regarded as father of modern chemistry. But who is the general father of chemistry? That is the Jabir ibn Hayyan. अब ये जो chemistry है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो आप याद रखेंगे दैट केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. केमिस्ट्री का वजूद कैसे हुआ? इसका डेवलपमेंट, हाँ, एक्चुअली ये जो अल्केमिस्ट्स थे दे वर सर्चिंग टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर फर्स्ट वाज, सो लेट्स हैव डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. हाउ केमिस्ट्री गॉट डेवलप्ड. तो क्या बताया मैंने? केमिस्ट्री got developed because of search of two important things. Two important things. One is philosopher's stone. One is the philosopher's stone. And another is the elixir of life. One is the philosopher's stone, another is elixir of life. अब ये दो चीज़ें क्या है, इनको समझेंगे. फिलोसफर स्टोन मतलब एक ऐसा स्टोन या एक ऐसा सबस्टेंस या एक ऐसी टेक्निक जिससे हम किसी भी बेस मेटल को कन्वर्ट करेंगे इनटू गोल्ड. क्या बताया? फिलोसफर स्टोन में हम क्या करते हैं?
यस, ये अल्केमिस्ट्स क्या करते थे, ये क्या सर्च कर रहे थे कि हम कैसे किसी भी मेटल को, बेस मेटल को किस में कन्वर्ट करें, गोल्ड में। जैसे हमारे पास बेस मेटल, वी आर हैविंग कॉपर, है ना, या वी आर हैविंग आयरन, या वी आर हैविंग लेड। लेड का सिंबल क्या है, पीबी। एक्चुअली कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड पलम्बम से। कहाँ से निकला है, पलम्बम, लैटिन वर्ड पलम्बम, तभी सिंबल पीबी है। और इन बेस मेटल्स को कैसे हम किस में कन्वर्ट करें, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या है, AU। वाई, बिकॉज इसका लेटिन नेम क्या है, ऑरम। इसका लेटिन नेम क्या है, यस, AURUM, ऑरम। तो ये इस सर्च में लगे हुए थे। किस सर्च में, कि हम कैसे किसी भी बेस मेटल को किस में कन्वर्ट करेंगे, यस, गोल्ड में। वाई, ये ऐसा क्यों कर रहे थे, इस सर्च में ये क्यों लगे हुए थे कि हम किसी भी बेस मेटल को कन्वर्ट करेंगे इनटू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज ए हाईली प्रेशियस मेटल, हाईली कॉस्टली, है ना। और तभी इनका क्या मकसद था कि किसी भी बेस मेटल को किस में कन्वर्ट करेंगे, गोल्ड। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी, है ना, हाईली प्रेशियस, हाईली कॉस्टली। सो दैट इज वाई क्या किस सर्च में लगे हुए थे, that how to convert any base metal like copper, iron, lead into gold, into। तो इस सर्च में जब ये लगे तो इससे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, केमिस्ट्री का वजूद हुआ। बताओ कैसे, देखो जब ये इस सर्च में लगे कि कोई मेटल लिया, अब इसको कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले ये क्या करेंगे, उस मेटल को देखेंगे उसके अंदर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, है ना, फिर उसकी स्ट्रक्चर, और फिर ये देखेंगे कि गोल्ड में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन सी कंपोजिशन है, पार्टिकल्स क्या है, और फिर ये इस नतीजे पे आ जाएंगे कि हम कैसे किसी भी बेस मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू गोल्ड। क्लियर? Now nowadays it is very easy to convert any base metal into gold. किस टेक्निक से? With the help of, very good, nuclear transmutation. With the help of nuclear transmutation से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी बेस मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू गोल्ड। बिकॉज नाउ वी इजिली नो दैट एक एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन नंबर ही क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सो इसके अंदर कितने प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसके अंदर 2 प्रोटॉन। तो अगर हमें पता चला कि गोल्ड में कितने प्रोटॉन है, और सिमिलरली कॉपर में, जैसे कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, तो अब क्या करना है, इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो प्रोटॉन्स कितने आने चाहिए, जितने गोल्ड में होंगे। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर। दैट मीन्स बेस मेटल्स का न्यूक्लियस जो है उसको ट्रांसम्यूट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, गोल्ड में। मतलब जो न्यूक्लियस गोल्ड में है वही न्यूक्लियस अगर इनमें बनाएंगे तो मतलब क्या हुआ, हमने बेस मेटल को किस में कन्वर्ट किया, गोल्ड में। सो वी कैन इजीली कन्वर्ट एनी बेस मेटल इनटू गोल्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर। पर जब तक ये इस सर्च में लगे कि कैसे हम किसी भी बेस मेटल को किस में कन्वर्ट करें, तब तक इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन with the help of which development of chemistry occurs, ठीक है ना। so that is the philosopher's stone. next जो है ये किस सर्च में लगे थे, that is the elixir of life. elixir of life, इसका मतलब क्या हुआ, yes, anything या any substance which when drunk causes immortality. causes क्या हुआ इसका मतलब, anything, any substance which when drunk causes immortality, that is called elixir of life. that means कोई भी ऐसा substance which when drunk, जिसको हम क्या करेंगे, drink करेंगे, और इससे क्या होगा, it will cause immortality. immortality means फिर उसकी डेथ नहीं हो जाएगी, वो समझ में आता, इमोर्टाइल बन जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो डेथ। तो ये सर्च में लगे हुए थे कि किस सब्सटेंस को हम व्हेन इट इज ड्रिंक एंड इट विल कॉज इमोर्टैलिटी। और जैसे हम कहते हैं आब हयात, क्यों वैसे बना, उससे क्या होगा, मतलब एक ऐसा वाटर जिससे क्या होगा, डेथ नहीं होगी, हयात मिलेगी, ठीक है ना, आब हयात। तो दैट इज कॉल्ड एलेक्सर ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड द
elixir of life. So they were in the search of such substances, anything which will cause immortality. और इससे क्या हुआ, जब इन्होंने देखा, चलो देखते हैं इस सबस्टेंस से क्या होगा, इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास कौन सी स्ट्रक्चर है, तो दैट मीन्स केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ. केमिस्ट्री का हमें बहुत सारे मैटर जो है, बहुत सारे सबस्टेंसेस जो है, उनकी प्रॉपर्टीज पता चले, उनकी तो ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई. केमिस्ट्री की वन इज द फिलोसफर्स. हाँ, क्या किया जाता है इसमें, किसी भी बेस मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू गोल्ड. सिमिलरली एलेक्सर ऑफ लाइफ, ये इस सर्च में लगे थे दैट वी विल फाइंड एनीथिंग, एनी सबस्टेंस व्हिच व्हेन ड्रिंक causes immortality, causes. तो ये दो चीजें थी जिनकी वजह से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ. जैसे ग्रीक फिलोसफर्स, इंडियन है ना, they were using one of the spice, that is the cinnamon, one of the spice, cinnamon. इनको लगता था that when cinnamon it is soap is drinked it will cause immortality. वो क्या इनको लगा था, अगर cinnamon है ना, कच्चा ना दालचीन, one of the spice, अगर इसको ड्रिंक करेंगे, ठीक है ना, सो इट विल कॉज इमोर्टल. तो ऐसे बहुत सारे सबस्टेंसेस इन्होंने फाइंड किए, उनकी प्रॉपर्टीज फाइंड की, और ऐसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलेक्सर ऑफ लाइफ दैट दे वर यूजिंग सिनेमोन. किसके लिए, दैट हाँ इट विल कॉज इमोर्टलिटी. पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये इसके सर्च में लगे थे. और किसके सर्च में, कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, एक ऐसा ड्रिंक हमें मिलना चाहिए ताकि हम इमोर्टाइल बन जाए, ताकि इससे क्या होगा, डेथ ना हो, इससे डेथ, और इसकी वजह से केमिस्ट्री का क्या हुआ, डेवलपमेंट. नाउ अब जब हमें समझ में आया केमिस्ट्री है क्या, नाउ व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, व्हाट इज इट इज इम्पोर्टेंस. सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री. जब हमें समझ में आ गया कि केमिस्ट्री है क्या, सो इट इज वन ऑफ दैट ब्रांच ऑफ साइंस है ना, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और इनके ट्रांसफॉर्मेशन. और वी कैन से इट सिंपली डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना. और जब तक ना एप्लीकेशन होगी तब तक थोड़ी पढ़ेंगे. सो इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है. Now let us discuss in detail. Number first application, that is the supply of food, or we can say application in food industry, application in food industry. जरा बताओ कैसे इसकी एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की फूड इंडस्ट्री में, या कैसे केमिस्ट्री ने हमें फूड सप्लाई किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लेट्स सी. नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री ने हमें दिए फर्टिलाइजर्स. केमिस्ट्री ने क्या दिए, नाउ टेल मी व्हाट आर फर्टिलाइजर्स. यस, सिंपली केमिकल्स which will increase the fertility of soil, है ना. और what are fertilizers, simply the chemicals which will increase fertility of soil, which will increase fertility of soil, they are known as fertilizers. So जैसे एग्जाम्पल दे दो, which fertilizers which we are using in our daily life. जैसे यूरिया है ना, यूरिया आप याद रखेंगे, इट इज इसकी स्ट्रक्चर यस NH2 C डबल बॉन्ड O और फिर से NH2, दिस इज योर यूरिया. और यूरिया जो है, इट इज, यू विल रिमेंबर दैट इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या है ये, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन लैब. क्या बताया, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कहां पे सिंथेसाइज किया गया, लेबोरेटरी में, लैब के अंदर. क्योंकि इससे पहले क्या बताया जाता था, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं which are obtained from living things, that is plants as well as animals या any microorganism, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. पर जब पहली बार यूरिया बनाया गया लैब के अंदर, तब वो जो थ्योरी दी गई थी वो फेल हो गई, ठीक है ना. तो आप याद रखेंगे, यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोहलर. किसने ये सिंथेसाइज किया, वोहलर ने.
So this urea is the first organic compound synthesized in lab and it is used as a fertilizer. It is used as a हाँ, इससे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, एक थ्योरी दी गई, दैट्स कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी. दैट्स कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी. क्या बता रही थी? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ ऑब्टेन कहाँ पे कर सकते हैं? फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल. पर जब वोहलर ने पहली बार यूरिया को सिंथेसाइज किया कहाँ पे? तो तब वो थ्योरी क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई. राइट तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. पर अभी याद रखेंगे दैट यूरिया इट इज वन ऑफ द फर्टिलाइजर. वी आर हैविंग अमोनियम सल्फेट, अमोनियम yes NH4 whole twice SO4. yeah we are having ammonium phosphate है ना. we are having potassium nitrate. बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. बताओ किस लिए यूज करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? यस जब फर्टिलिटी सॉइल की जरखेज़ी इंक्रीज होगी तो यस ग्रोथ प्लांट्स की ज्यादा होगी और वो ज्यादा यील्ड देंगे, क्रॉप ज्यादा मिलेंगे. ठीक है ना. तो दैट इज द रोल ऑफ फर्टिलाइजर्स, दीज केमिकल्स. तो इसकी वजह से क्या होगा? फूड जो होगा वो इंक्रीज होगा. और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है, लेट्स से वी आर हैविंग 1 कनाल लैंड है ना, उसमें से आप राइस निकाल रहे हो. ठीक है. तो मुझे बताओ पहले अगर आप फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, लेट्स से वी आर गेटिंग 1 टन राइस, वी आर गेटिंग 1 टन. और अब अगर आप केमिकल्स का यूज करें, फर्टिलाइजर्स का, एंड यू आर गेटिंग 1.5 टन. ये जो 0.5 है ये कहां से आया? फर्टिलाइजर्स के यूज से. सो दीज फर्टिलाइजर्स हैव इंक्रीज्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड देन बाय गिविंग मोर क्वांटिटी और यील्ड ऑफ क्रॉप्स. ठीक है ना. तो ये जो फर्टिलाइजर्स है व्हाट आर दीज? दीज आर द केमिकल्स. और ये केमिकल्स यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी. ये कहां से पता चला? केमिस्ट्री के नॉलेज से. कहां से पता चला? तो केमिस्ट्री ने हमें क्या दिए? फर्टिलाइजर्स. और इन फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या मिला? फूड मिला. लेट्स हैव अनदर. केमिस्ट्री ने हमें क्या दिए? इंसेक्टिसाइड्स. क्या दिए? यस इंसेक्टिसाइड्स. यस सिमिलरली पेस्टिसाइड्स. ठीक है ना. सिमिलरली वीडिसाइड्स. क्या है इनका मतलब? इंसेक्ट साइड का मतलब होता है टू किल. दैट मीन्स दोज केमिकल्स विच विल किल दीज इंसेक्ट्स. बट विच इंसेक्ट्स? हार्मफुल और यूजफुल वंस? हार्मफुल है ना. सिमिलरली पेस्टिसाइड्स, those chemicals which will kill harmful pests, disease causing agents. Similarly weedicides, those chemicals which will kill weeds. weeds क्या होते हैं? unwanted plants. what are weeds? weeds are the unwanted plants जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. तो फिर ये क्या करते हैं? ये जो यूजफुल प्लांट्स हैं उनके न्यूट्रेंट्स को लेते हैं. तो दैट मीन्स आपका यील्ड जो है कम मिलेगा या ज़्यादा? कम है ना. तो दैट मीन्स वी हैव टू किल. जैसे आप देखते हैं tons of rice, tons of wheat, it gets destroyed due to rats. और किन की वजह से डिस्ट्रॉय होता है? एवरी ईयर है ना, हर साल ऐसा होता है दैट tons of rice and wheat it gets destroyed due to rats. तो दैट मीन्स इस टन ऑफ राइस को हमें बचाना है. तो कैसे बचाएंगे? केमिस्ट्री ने क्या दिए? पेस्टिसाइड्स है ना. सिमिलरली वीड्स, जैसे द 2 well-known insecticides which we are using, that is DDT and BHC. DDT and BHC. So what is their full form? DDT, that is your yes dichloro diphenyl trichloro ethane. क्या बताया? dichloro diphenyl trichloro ethane. This is the full form of DDT. इसके स्ट्रक्चर भी अगर आप याद रखेंगे, इट इज जस्ट लाइक दिस. डाइक्लोरो दैट मीन्स कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन. डाइक्लोरो उसके बाद 2 फिनाइल है. डाइक्लोरो डाइफिनाइल है ना. फिनाइल जस्ट लाइक दिस. सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल. और उसके बाद क्या है? उसके बाद है ट्राइक्लोरो दैट मीन्स फिर से 3 क्लोरीन. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और उसके बाद ईथेन. यस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कार्बन है? ये 2. यहाँ पे देख लो 1 and 2 कार्बन. बीच में ये हाइड्रोजन है और ये 3 क्लोरीन है. कार्बन कितने हैं? 2. तो जब 2 कार्बन होंगे तो विच वर्ड रूट इज यूज्ड? इथ. किसका यूज करते हैं? इथ. उसके बाद कार्बन, कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करें. सो इट इज योर ईथेन. तो क्या बताया? इट इज डाइक्लोरो 2 क्लोरीन. उसके बाद डाइफिनाइल 2 फिनाइल.
उसके बाद ट्राइक्लोरो, फिर से 3 क्लोरीन, और उसके बाद ईथेन. सो दिस इज योर DDT, वन ऑफ द insecticide used to kill the harmful, or used to kill the harmful insects, harmful. Similarly, another one is BHC. So what is the full form? Yes, it is benzene hexachloride, BHC, that is benzene hexachloride, benzene hexachloride. तो बताओ मुझे BHC, benzene hexachloride, इसकी स्ट्रक्चर भी अगर आप याद रखेंगे, so just like this, हेक्साक्लोराइड का मतलब यस, इसके अंदर कितने क्लोरीन होंगे? हाँ, हर एक कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन अटैच्ड है, सो देयर आर 6 क्लोरीन. इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड. पर आप याद रखेंगे यहाँ पे रिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं है जैसे बेंजीन में होते हैं. आप इसको कहते क्यों है बेंजीन हेक्साक्लोराइड? बिकॉज ये बेंजीन से हम प्रिपेयर करते हैं. और ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 6. हाँ, इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड. इट इज आल्सो नोन एज, सो आप याद रखेंगे BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. इट इज आल्सो नोन एज गैमेक्सेन. क्या इसको कहा जाता है? और इट इज आल्सो नोन एज लिंडेन. ये इसके 2 स्पेशल नेम्स आप याद रखेंगे. BHC इज आल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है? गैमेक्सेन. और इट इज आल्सो नोन एज linden. So it is also used as an insecticide. तो insecticide इसका रोल क्या है फिर? That they will kill the harmful insects. Similarly pesticides है ना, जैसे पैराथॉइन, मेलाथॉइन, ये सभी पेस्टिसाइड्स है. ये सभी क्या है? सिमिलरली DDT इंसेक्टिसाइड है ना, BHC इंसेक्टिसाइड. सिमिलरली वी आर यूजिंग द वीडीसाइड्स. तो किस लिए यूज करते हैं? In order to increase the food, in order to increase the, by killing these harmful insects, by killing these harmful pests. Similarly weeds. Similarly, तो बताओ मुझे नेक्स्ट केमिस्ट्री ने हमें दिया, ये अभी हम किस में देख रहे हैं? वन ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज द सप्लाई ऑफ फूड. नॉट क्या वन इज एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्री. तो बताओ नेक्स्ट वन इज, केमिस्ट्री ने हमें दे दिए फूड प्रिजर्वेटिव्स. सो व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स? यस, ऐसे केमिकल्स जिनसे हम फूड को क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे. सो फूड प्रिजर्वेटिव्स, जैसे वन ऑफ द कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव विच वी आर यूजिंग, दैट इज योर NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड. इट इज ए फूड प्रिजर्वेटिव. क्या है ये? इट इज ए फूड प्रिजर्वेटिव. क्या है ये? फूड प्रिजर्वेटिव. सिमिलरली मुझे बताओ, आपने देखा होगा वन ऑफ द गैस, नाइट्रोजन गैस, कहाँ पे यूज होता है? वो है ना, नाइट्रोजन गैस का यूज होता है जैसे पैकेट फूड्स में, लेज में, पोटैटो चिप्स में. किस लिए? नाइट्रोजन गैस इज योर इनर्ट गैस. इसको क्या कहा जाता है? इट डज नॉट शो रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो ये कैसा गैस है? इनर्ट गैस. तो मुझे बताओ, ये इनर्ट गैस हम क्यों यूज करते हैं वहां पे? ताकि ये फूड के साथ रिएक्शन ना करे, वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी. जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फूड आपका खराब नहीं होगा. जैसे आपने पढ़ा होगा रेंसिडिटी ऑफ फूड, 10th में पढ़ा है ना. रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो फूड पूरा क्या होता है? खराब हो जाता है. तो दैट मीन्स वो फूड डिस्ट्रॉय हुआ, वो फूड क्या हुआ? अब उसको बचाना है तो क्या यूज करेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव. तो फूड प्रिजर्वेटिव में क्या क्या आता है? NaCl, N2, दैट इज द नाइट्रोजन गैस. सिमिलरली आपने पढ़ा होगा butylated hydroxytoluene, that is BHT, and BHA, butylated hydroxyanisole. ये ऐसे 2 केमिकल्स है जिनका हम यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व द फूड. आपने देखा होगा ना, मोस्ट ऑफ द फूड इन द मार्केट दैट इज पैकेट होता है ना, पर वो बहुत सारे मंथ्स तक चलता रहता है. कैसे वो कैसे प्रिजर्व रहता है? क्योंकि उसके अंदर क्या हमने ऐड किया होता है? फूड प्रिजर्वेटिव. सो दे प्रिजर्व आवर फूड, है ना. व्हाट इज द फुल फॉर्म? ये याद रखा, BHT. फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलीन. Similarly BHA, it is butylated hydroxyanisole. Butylated hydroxy.
Similarly, butylated hydroxytoluene. So these are the two chemicals which are used to preserve the food. To preserve the, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, बहुत सारे केमिकल्स है विच वी आर यूजिंग एज फूड प्रिजर्वेटिव. जैसे हमारे पास है विनेगर, है ना, यूज करते हैं इसका, है ना, पिकल्स के अंदर, विंटर में पिकल्स के अंदर विनेगर के अंदर होता क्या है, कौन सा एसिड होता है, कोई बता सकता है? दैट इज द एसिटिक एसिड. दैट इज द, सो एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव. सो इट प्रिजर्व्स द फूड फ्रॉम पैथोजेंस और फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम फंजी, in order to protect this, है ना, from different pathogens, from oxidation, because oxidation की वजह से फूड क्या होता है, खराब हो जाता है. Another one you will remember that chemistry ने हमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स दिए जिनकी वजह से हम बता सकते हैं whether food obtained from the market is pure or not. That is called the application in food adulteration. अब बताओ फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केट में बहुत सारा फूड ऐसा आता है विच इज़ नॉट प्योर. विच इज़ नॉट प्योर क्यों नहीं होता है? इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से फूड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है. क्वांटिटी तो बढ़ सकती है पर क्वालिटी खराब हो जाती है. उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एडल्ट्रेंट्स. उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एडल्ट्रेंट्स, फूड एडल्ट्रेंट्स. जैसे एग्जाम्पल बताओ, अना वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल, द मिल्क विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट, इज इट प्योर? नो. इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है? वाटर. वो क्यों वाटर ऐड किया जाता है? ताकि इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, ताकि उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, पर इसकी क्वालिटी इससे क्या होता है? इसकी क्वालिटी तो कम होती है ना. जैसे मुझे बताओ, फ्रूट जो आते हैं मार्केट के अंदर, है ना, मैंगोज है, बनानाज है, क्या वो भी प्योर होते हैं? क्या उनकी क्वालिटी अच्छी होती है? नो, नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके अंदर हाँ, वो कैसे राइप किए जाते हैं, है ना, बाय एडिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग, जैसे वन ऑफ द केमिकल यूज्ड टू राइप मैंगोज एंड बनानाज, कौन सा यूज करते? यस, वी आर यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, है ना, वो याद रखेंगे, इट इज CaC2. कैल्शियम कार्बाइड से क्या किया जाता है? विच फ्रूट इज राइपन? शाबाश, मैंगोज, है ना. वो कौन सा फ्रूट राइपन? यस, किया जाता है, मैंगोज, है ना. तो जब इन केमिकल से हम इन फ्रूट्स को राइप करेंगे तो ये तो जल्दी राइप हो जाते हैं पर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है ना. सिमिलरली बनानाज, कैसे इनको राइप किया जाता है? बाय इथाइलिन, है ना, बाय एडिंग विच गैस? इथाइलिन. इससे ये जल्दी राइप तो हो जाते हैं पर इनकी क्वालिटी नहीं रहती है. अब आ जाओ, जैसे हमारे पास मार्केट के अंदर हनी आता है ना, ये भी प्योर नहीं होता. इसके अंदर एडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं. क्या ऐड किए जाते हैं? यस, शुगर्स ऐड किए जाते हैं, सक्रोज का एडिशन किया जाता है, फ्रक्टोज ऐड करते हैं. तो इन शुगर्स की वजह से ये जो इसकी क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं रहती है. सो ऑल दीज फूड्स विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द मार्केट, दे आर नॉट प्योर, दे आर इम्प्योर. दे आर बिकॉज what the people are adding adulterants. मैंने इनको क्या बताया? yes, any substance which when added to any food or fruit which increases the quantity but decreases the quality, that is called food adulterant. that is called और इस प्रोसेस को हम क्या बताएंगे? फूड एडल्ट्रेशन. अब केमिस्ट्री ने क्या किया? केमिस्ट्री ने हमें ऐसे भी मेथड्स दे दिए जिनकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या फूड के अंदर एडल्ट्रेंट्स है या नहीं है ना. और जैसे आपको देखना है, मिल्क के अंदर वाटर ऐड किया हुआ है, आप कैसे देखेंगे? कोई मेथड बताओ शाबाश, जिससे आपको पता चलेगा कि मिल्क के अंदर वाटर ऐड किया हुआ है. एक्चुअली जो भी मिल्क हम ऑब्टेन करते हैं, लेट्स से मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम काउ, है ना, उसके अंदर एक अगर हम पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे, लेट्स से 1 लीटर या 0.5 लीटर, उसके अंदर मिल्क के अंदर क्या होता है? फैट होता है. तो वो फिक्स्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मिल्क के अंदर कितना फैट होगा ये क्या शासा? फिक्स्ड. अब अगर आपने मार्केट से मिल्क लाया तो आपने उसके अंदर फैट की क्वांटिटी चेक की और वो कम थी, वो क्या थी? उसका क्या मतलब हुआ?
यस वो इम्प्योर है, उसमें वाटर ऐड किया हुआ है. सो दैट मीन्स वी कैन डिटेक्ट द वेरियस एडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट इन द फूड. और जैसे मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स है ना जो हम मार्केट से लाते हैं, यहाँ पे अभी उतना नहीं है, पर बड़े बड़े मार्केट में ऐसा होता है दैट वेजिटेबल्स को डाई ऐड किया जाता है. क्या ऐड किया जाता है? और जैसे हम स्पाइसेस में भी जस्ट वी आर हैविंग द टर्मेरिक, उसमें ऐड क्या किया जाता है? हाँ, डाइज आर एडेड है ना, इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव है ना, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, पर उसकी वजह से उसकी क्वालिटी क्या होती है? खराब हो जाती है. सो दैट डाई इज एन एडल्ट्रेंट, दैट डाई इज एन. तो इन एडल्ट्रेंट्स को हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स गिवन बाय केमिस्ट्री. गिवन बाय, जैसे वन ऑफ द टेक्निक इज टाइट्रेशन मेथड. किन से हम देख सकते हैं? टाइट्रेशन मेथड. जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन होता है. क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन. ठीक है ना, एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाता है. व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर. वहां पे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर. तो इसको बताएंगे एसिड बेस टाइट्रेशन. वैसे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको रिएक्ट करवाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ. किसके साथ? तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स हमने केमिस्ट्री ने दे दिए जिनकी वजह से वी कैन डिटेक्ट फूड एडल्ट्रेशन. वी कैन चेक वेदर फूड इज प्योर और नॉट. सिमिलरली द मेडिसिन्स व्हिच वी आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट, वेदर दे आर प्योर or impure, whether they are pure or clear. So this was one of the application, that is application in food industry, that is application in, or we can say supply of food. Next lecture में इसको आगे और complete करेंगे.